So, a very warm good afternoon to one and all present here. I, Ayushi Barua, along with my co host Himanshi Tyagi and Yachna Miglani, Amity Scholars, welcome you all on behalf of Amity Institute of Education, Amity University, Uttar Pradesh, Noida. With the kind blessings and support of our Honorable Founder President, Dr. Ashok K. Chauhan Sir, along with concrete efforts of respected Chancellor, Dr. Atul K. Chauhan Sir, inspiring leader, Vice Chancellor, Professor Palvinder Shukla Madam, and motivational head of Amity Institute of Education, Professor Alka Mudgal Madam. We welcome you to this workshop on the topic non-parametric statistics in educational research by commemorating the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad and celebrating the National Education Day. With consistent hard work and supervision of faculty coordinators, Dr. Mahima Gupta ma'am and Dr. Dyal Pyari ma'am. Abul Kalam Azad, also known as Maulana Abul Kalam Azad, was an Indian scholar, Islamic theologian, senior leader of the Indian National Congress during the Indian independence movement, member of Foundation Committee to establish the Jamia Millia Islamia at Aligarh in Uttar Pradesh, and an independent activist. Born on 11th of November 1888, he was known as the man of high integrity that put forth his tireless, courageous, and dedicated contribution in the Indian freedom struggle against the British Raj. It was him who believed that we as Indians, if united, will help to make India independent from British rule. And thus, it was ever since 2008, November 11, that to celebrate his contribution and his outstanding role as an independent India's first education minister, we observe this day as National Education Day. Henceforth, we dedicate this day to embark the contribution in transforming India with his persistent vision. Ayushi muted. Sorry. With this, we are honored to welcome our eminent resource person of the day, Professor N.P.S. Chandel sir, who is the professor and head at the Department of Foundations of Education at Dayal Bagh Educational Institute, Agra. Having 32 years of experience in research and teaching in education, he has guided about 32 M.Ed and M.Phil dissertations along with 3 PhD degrees, which have already been awarded, and 6 taking place under his supervision. He has also completed 4 research projects and has been the convener of various national level workshops and seminars organized by the Faculty of Education, DEI. To his honor and recognition, he has added various feathers to his cap, such as Best Teacher Educator Award by National Conference on Behavioral Sciences, Agra 2012, Researcher of the Year Award by International Conference on Education, Agra in 2013, and many more. His research interests are education and technology, non-verbal communication and information technology, population education, and teacher education. He has published 45 research papers and articles in national and in international journals. Professor Chandel has attended more than 60 national and international conferences, seminar, workshop, and training courses. He has also published 4 books and was nominated as the member of a verification team and member of the working group curriculum for the existing teacher education program constituted by NCTE. Along with this, our guest of honor is member and ex-joint secretary of All India Association of Educational Research and Council of Teacher Education, UP chapter. He has acted as resource person, delivered keynote addresses, chaired different sessions, delivered lectures in many conferences, seminar, workshop, orientation program, and refresher courses. We extend our heartiest welcome to you, sir. Without taking much time, we would like the gathering. Sir, you are mute. Okay. Thank you very much. And so big introduction was not required. Actually, I am simply a teacher. I'm more of a teacher, less of a researcher. And the specific interest
my specific interest is in statistics, and most of the lectures are I have delivered are on statistics, or those are on the communication. Today, the topic of first of all, I would like to thank Professor Mudgal and Dr. Dayal and the MIT University, all faculty members, for providing me this opportunity to share my experiences with you. Today's topic, as it has already been shared with all, it is non-parametric statistics in educational research. Generally we use statistics. Parametric statistics is mostly and widely used in research, but parametric statistics has certain limitations. And that's why the parametric statistics, not only the limitations, but parametric statistics has some assumptions. That's why it is not possible to use parametric statistics at every place. So when we are unable to use parametric statistics because of the assumptions are not being fulfilled, then we have to use non-parametric statistics. May I know that how many participants are there in this workshop presently? Not able to see the number. Sir, 86. 86. Presently, yeah. Okay. Would you like that I should be bilingual or should I speak in English? Or I can't speak purely in Hindi, but I am very comfortable in bilingual or English. The bilingual would be fine. Bilingual. Yeah. Okay. You are seeing a link. This is my YouTube channel on statistics. About 43 lectures have been uploaded on this, and most of the MEd level or MPhil level or some PhD level topics are being covered in this. So you can see visit this YouTube channel and see those lectures. And there the lectures on whatever I have covered in this non-parametric statistics on most of the topics, my lectures of half an hour and 40 minutes are on every type of non-parametric statistics there. You can, after this, whenever you get time, you can visit this channel and see those. Next please, next slide please. ये सबसे पहले मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स है क्या, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। मींस स्टैटिस्टिक्स तब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते हम जब तक कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं हो। हमें जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको भी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि गुड, वेरी गुड एंड एवरेज, पुअर एंड वेरी पुअर, हमने 5 पॉइंट रेटिंग कराई and it is qualitative rating, but when we use the statistics, then we have to find out that how many members have ticked on very good and how many members have ticked on good. Or so this way we have to at least we require at least frequencies. Frequency is also a number, that 5 members are there said very good, 4 members said good, and like that. This is also number. It means we can apply statistics only and only when we have numerical data. तो numerical data का collection, classification, ठीक है, उसका presenting, classify करने के बाद tabulation या graphical presentation, whatever, है ना, presenting, है ना, analysis and comparison, comparing. मतलब we have to compare the data. We use different statistical techniques to analyze the data and interpret, meaning निकालें उस data का मतलब क्या है ये. Next please. Next slide please. है ना, statistics and educational research जो है वो शुरुआत statistics के बिना, अगर आपका statistics पे कमांड नहीं है तो एक अच्छी रिसर्च के बारे में नहीं सोचा जा सकता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। You are doing philosophical research, definitely you are doing historical research, तो ऐसा नहीं है कि statistics एक मीडियम है। जो स्टैटिस्टिक्स आपको लगानी है उसको आप दूसरे लोगों की सपोर्ट से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम हो जाती है। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स आपको किसमें काम करती है? सबसे पहली चीज तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में काम करती है। आपको ट्रेंड एनालिसिस करनी है, मेटा एनालिसिस करनी है, रिजल्ट्स को समझना है कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स हैं
वो क्या रिजल्ट्स दे रही हैं। तो स्टैटिस्टिकल जो उसमें टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट्स बताए हैं, उनको जब तक हमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो हम उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। रिसर्च प्रपोजल बनाना है हमें, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है टॉपिक सेलेक्ट, रिसर्च टॉपिक एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। रिसर्च टॉपिक इवन जब आप डिसाइड करते हो, जब टॉपिक आपका होता है, वो बता देता है कि इस रिसर्च टॉपिक से क्या डिजाइन बनेगा, क्या हाइपोथेसिस बनेंगी, क्या सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी। मतलब टॉपिक अगर अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है तो वो आपको पूरा रिसर्च डिजाइन का अंदाजा लग सकता है उससे। रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे, इसमें भी आपको वो रिसर्च क्वेश्चंस का जवाब कैसे मिलेगा, ये स्टैटिस्टिक्स आपको वहाँ आइडिया लग सकता है ना। हाइपोथेसिस आप जो बनाते हैं, है ना, हाइपोथेसिस में एनोवा लगेगा, टी टेस्ट लगेगा या नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगेगी, ठीक है। तो वो हाइपोथेसिस आपको बता सकती है कि इसमें यहाँ क्या स्टैटिस्टिक्स लगेगी। तो जब आपको ये नहीं मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स क्या लगेगी, तब तक हाइपोथेसिस फ्रेम करना थोड़ा मुश्किल होता है। सैंपल सिलेक्शन में सैम्पलिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं। नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, सैंपल को देखना पड़ता है कि सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की गई है या नहीं की गई है। इस सब में जो सैंपल है, सैंपल ठीक से सेलेक्ट हुआ, इसमें हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। रिसर्च डिजाइन, डेफिनेटली रिसर्च डिजाइन के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्लीज। टूल डेवलपमेंट, आपको डिफिकल्टी वैल्यू पता करनी है आइटम्स की, टूल और डिस्क्रिमिनेशन पावर पता करनी है, आइटम एनालिसिस करनी है, वैलिडिटी निकालनी है, आइटम वैलिडिटी निकालनी है, टेस्ट की वैलिडिटी निकालनी है, रिलायबिलिटी निकालनी है। एवरीवेयर यू रिक्वायर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, डेटा, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है ही। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करनी होती है डेटा की, तो हमें जरूरत पड़ती है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने होते हैं, नॉर्मलिटी टेस्ट करनी होती है, हाइपोथेसिस टेस्ट करनी होती है, इन्फरेंसेस ड्रॉ करने होते हैं। ये मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन लेक्चर। नेक्स्ट प्लीज। अब स्टैटिस्टिक्स कितने तरीके की होती है। स्टैटिस्टिक्स को मुख्य तौर पे दो भागों में बांटते हैं हम। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अगर हम देखें तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखें तो जो डिस्क्रिप्शन देता है डेटा, है ना, डेटा का नेचर क्या है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेटा मतलब किस तरीके का है, वो अगर हमें देखना होता है तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आ जाता है, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी आ जाते हैं, इनको मीन मीडियन मोड कहते हैं, ठीक है। मेजर्स वेरिएबिलिटी आ जाते हैं, है ना। वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है, रेंज आता है, और मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चार मुख्य तौर पे होते हैं, है ना। मेजर्स पोजीशन आते हैं, है ना। मेजर्स ऑफ पोजीशन की परसेंटाइल रैंक हम इसके लिए पता करते हैं, डिसाइल पता करते हैं, है ना। इसी तरीके से जेड स्कोर्स पता करते हैं, ये सब मेजर्स ऑफ पोजीशन कहलाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। कोरिलेशन आता है, इसमें मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन आता है, बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशंस आते हैं, ठीक है। तो इनका हम ये डिस्क्रिप्शन देते हैं डेटा का। कोरिलेशन है कितना, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताएगा। कोरिलेशन सिग्निफिकेंट कितना है, ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताएगा। मीन क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताएगा। और मीन कितना सिग्निफिकेंट है, कितना रिलायबल है, ये डिस्क्रिप्टिव वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताएगा। तो जो वैल्यूज हैं हमने कैलकुलेट की हैं, वो वैल्यूज कितनी सिग्निफिकेंट हैं, कितनी रिलायबल हैं, है ना। ये सब पता करने के लिए दो वैल्यूज हैं, उनमें कोई अंतर सार्थक है या नहीं है ना, कोई रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है, ये सब पता करने के लिए हमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ती है। ये दो तरीके की होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एक तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स को पैरामीट्रिक क्यों कहते हैं, ये समझ लें थोड़ा सा, तो हमें सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। देखिए पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है बेसिकली पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर कहलाता है। हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं और सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं और उससे स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। हमने मान लीजिए मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो वो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। और जिस पॉपुलेशन से हमने वो सैंपल लिया है ना, वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, पॉपुलेशन का मीडियन क्या होगा, पॉपुलेशन का कोरिलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन में जो दो वेरिएबल्स हैं या जो दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं उनमें क्या कोरिलेशन है पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर,
तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का पर्पस होता है पैरामीटर्स का अनुमान लगाना, है ना। पैरामीटर अगर हमारे पास होते तो जरूरत ही नहीं थी सैंपल स्टैटिस्टिक्स निकालने की, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है कि इंडिया में सेक्स रेशियो क्या है, इवन हमारे पास स्टेट्स का डेटा है, डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा है, तो सेक्स रेशियो पे कोई डेटा कलेक्ट करके कोई फाइंडिंग देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव पॉपुलेशन डेटा। तो इसीलिए उस पर कोई रिसर्च नहीं होती है कि सेक्स रेशियो निकालने के लिए आपने कोई देखी कि सेक्स रेशियो कानपुर में क्या है, सेक्स रेशियो आगरा में क्या है, कोई रिसर्च नहीं होती, बिकॉज वी हैव द पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, पूरी पॉपुलेशन पर डेटा हमारे पास है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो वो पैरामीटर का अनुमान हम लगाते हैं सैंपल से। तो सैंपल से अनुमान कब अच्छा लगेगा? जब जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है वो सैंपल पैरामीटर जो मतलब पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कब होगा? पहली चीज तो ये होनी चाहिए उसके लिए कि पॉपुलेशन से जो सैंपल सेलेक्ट किया गया वो क्या होना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए उसका, है ना। अगर रैंडम सिलेक्शन नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि सारे जो मतलब हर सदस्य के चुने जाने की संभावना जनसंख्या से समान होनी चाहिए, है ना। तो वो रैंडम से होता है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होनी चाहिए बेसिकली, है ना। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग आता है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी जनसंख्या से छोटा सा सैंपल लेकर के हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, लार्ज साइज सैंपल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, जब हम सैंपल ले लें तो उसको देख लें कि क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनपीसी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब उसमें कुछ हाई एंड स्कोर्स भी होने चाहिए, कुछ लो एंड स्कोर्स भी होने चाहिए, मिडिल वाले स्कोर्स भी होने चाहिए, मिडिल वाले ज्यादा होने चाहिए, हाई एंड लो एंड वाले प्रोपोर्शनेटली कम होने चाहिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चौथा एक और इसका वो चीज होती है कि तब हम कह सकते हैं कि हमने अगर n नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हैं किसी पॉपुलेशन से, तो जो सारे सैंपल्स हैं उनमें वेरिएंस में होमोजिनिटी होनी चाहिए, कि सभी में वेरिएंस एक जैसा हो, मिलता जुलता हो। वेरिएंस जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस कहलाता है, मतलब वेरिएबिलिटी का एक मेजर है। तो वेरिएंस जो है वो उसमें जितने सैंपल्स हमने लिए हैं उनमें होमोजिनिटी होनी चाहिए। तो ये चार बातें अगर पूरी होती हैं, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नंबर 2 लार्ज सैंपल, नंबर 3 होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस, एंड नंबर 4 एक और बताया था मैंने, क्या बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चार बातें, ये कंडीशंस हैं, अगर ये पूरी होती हैं तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स तभी लगा सकते हैं जब ये चार असम्पशंस पूरे हो रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम डेटा कलेक्शन करने के लिए, जब डेटा कलेक्शन करने के लिए सैंपल लेते हैं तो सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिले हमें तो क्या करें, लार्ज सैंपल नहीं ले पाए तो क्या करें, तो क्या रिसर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं मिले तो क्या हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिले सैंपल में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं कर पाए तो क्या हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो हमारे पास कंपैरेटिवली लेस पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करके, मतलब हम उतने अच्छे तरीके से, उतने विश्वास के साथ, उतने पावर के साथ नहीं कह सकते अपने रिजल्ट्स को, उतने पावरफुल्ली जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वी हैव सम methods which can be used and inferences can be drawn, ठीक है। तो इसलिए जब हमें वास्तव में नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करने के दरवाजे बंद, है ना। क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक लेस पावरफुल स्टैटिस्टिक्स है, पैरामीट्रिक ज्यादा पावरफुल स्टैटिस्टिक्स है। एक चीज और होती है, देखिए जब हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो उस समय आप देखिए कि इसमें हम टी टेस्ट लगा रहे हैं, नोवा लगा रहे हैं, एनकोवा लगा रहे हैं, मनोवा लगा रहे हैं, ये सारी चीजें तब लग सकती हैं जब हमारे पास स्कोर्स जो हैं वो कम से कम एटलीस्ट इंटरवल स्केल पे हों, मतलब या तो इंटरवल स्केल पे हों या रेशियो स्केल पे हों। 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आपने पढ़े होंगे, नंबर 1 nominal scale, number 2 ordinal scale, number 3 interval scale, number 4
रेशियो स्केल, ये 4 स्केल्स होते हैं। तो पहले जो 2 स्केल्स हैं, अगर इन पे आपके पास डेटा है तो आप पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते, बिकॉज यू कांट कैलकुलेट मीन, यू कांट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आपके आगे की पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं लग सकती। तो पहली चीज तो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं, और दूसरी चीज जो डेटा कलेक्शन किया गया है वो डेटा कलेक्शन अगर इंटरवल स्केल पे नहीं है मिनिमम, तो फिर हमें नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स ही लगानी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जब हमारे पास रेटिंग्स होती हैं, हायरार्किकल ऑर्डर में डेटा अरेंज होता है ना, ऑर्डिनल स्केल पे डेटा होता है, ऐसे में फिर हम केवल नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स ही लगा सकते हैं, तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा सकते। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं, है ना, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ मीन टेस्ट करते हैं, रिलायबिलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं मीन की, और दूसरी स्टैटिस्टिक्स की भी करते हैं। टी टेस्ट लगाते हैं, एनोवा लगाते हैं, एनोवा 1 वे 2 वे 3 वे एनोवा होता है, एनकोवा लगाते हैं, मतलब जब कोवेरिएंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, मनोवा लगाते हैं, ठीक है, जब हमें मल्टी वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना होता है ना, 1 वे 2 वे 3 वे मनोवा कहलाते हैं ये। अदर मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं, फैक्टर एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, पाथ एनालिसिस है, ये सब प्रेडिक्शन रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। नेक्स्ट प्लीज। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं उनको कवर किया है, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स assumption फ्री मानी जाती है, ठीक है, assumption फ्री, क्योंकि पैरामीट्रिक में 4 assumptions होते हैं, अभी बताया मैंने कौन कौन से 4 assumptions हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, लार्ज सैंपल, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ये मेजर 4 assumptions होते हैं। तो ये assumptions यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स बिना assumptions के भी आप लगा सकते हैं, कोई assumption टेस्ट करने की जरूरत, ठीक है। दूसरा, जब डेटा हमें ऑर्डिनल स्केल पे हो या नॉमिनल स्केल पे हो, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आती हैं? एक तो काई स्क्वायर टेस्ट आता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। रन टेस्ट आता है, साइन टेस्ट आता है, विल्कॉक्सन मैच पेयर साइन टेस्ट आता है, नेमार टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ चेंजेस है, मीडियन टेस्ट है, मीडियन टेस्ट फॉर सेवरल सैंपल्स है, मैन विटनी यू टेस्ट है, कॉल्मोग्रेव स्मिर्नोव टेस्ट है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट है, ठीक है। देखिए फ्राइडमैन टेस्ट है। ये सारे टेस्ट जो हैं ये सब्स्टिट्यूट्स हैं पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। जैसे पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जनरली हम मीन के बेसिस पे इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में मीन नहीं होता, मीडियन बेस होता है, ठीक है। मीडियन के बेसिस पे सारे इन्फरेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। मीन को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली करता मीडियन के बेसिस पर ही है कंपैरिजन। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती हैं, मीडियन पर बेस्ड होती हैं, है ना। ज्यादातर इसमें फ्रीक्वेंसी या रैंक का इस्तेमाल होता है इन सारे इनमें जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, वहां पे स्कोर को हमें या तो रैंक, जैसे हमारे पास मान लीजिए इंटरवल स्केल पे डेटा है, वहां भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो स्केल डेटा पे भी ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है कि जो इंटरवल स्केल पे डेटा है उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ऑर्डिनल स्केल में, है ना। जैसे हमारे पास मार्क्स हैं, तो जब नॉन पैरामीट्रिक लगाएंगे तो मार्क्स की रैंकिंग करनी पड़ेगी हमें। हमने जो इंटरवल स्केल का डेटा था, है ना, जिसमें 100 में से नंबर दिए हुए थे मान लीजिए, है ना, क्लास टेस्ट के नंबर थे, तो वो मार्क्स जो हैं वो उनको हमें रैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या मार्क्स में फ्रीक्वेंसीज लेनी पड़ेंगी कि यहाँ से इतने तक नंबर पाने वाले इतनी फ्रीक्वेंसीज थी, इतनी फ्रीक्वेंसीज थी, इतनी फ्रीक्वेंसीज थी। उन फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। तो आइदर वी हैव टू यूज फ्रीक्वेंसीज और वी हैव टू यूज नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, वी हैव टू यूज रैंक्स, है ना। तो आगे आप देखोगे तो सभी में इन्हीं में से किसी न किसी चीज का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, अच्छा हाँ, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो इसके हमें क्यों यूज करना पड़ता है, कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना पड़ता है, रीजन क्या है,
एक तो अजम्पशंस पॉपुलेशन के बारे में जब फुलफिल नहीं हो पाते हैं, है ना, सैंपल के बारे में अजम्पशंस फुलफिल नहीं हो पाते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साइज वो वैसे ही अजम्पशंस में आ जाता है, पॉपुलेशन का साइज छोटा होता है। ठीक है, अगर आपके पास 5 केसेस हैं तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगा के आप रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगा के रिजल्ट निकालना ठीक नहीं है ना। तो स्मॉल सैंपल है और डेटा का जो कलेक्शन है वो ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल पे किया गया है। ठीक है, नॉमिनल स्केल में खाली जानते हैं आप, नॉमिनल स्केल में क्लासिफिकेशन होता है और ऑर्डिनल स्केल में हायरार्की होती है। नॉमिनल स्केल में कोई हायरार्की नहीं होती, मेल और फीमेल, है ना, कोई हायरार्की नहीं है। दीज आर टू सिंपल कैटेगरीज। ठीक है, या तो यस या नो उस कैटेगरी में कोई आता है या नहीं आता है। टू व्हाट एक्सटेंट ये चीज नहीं है ना। यहाँ पे होती है मैग्नीट्यूड होता है, जो नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल होता है वहां पे इस तरीके का मैग्नीट्यूड होता है ना, कि अच्छा तो कितना अच्छा है ना, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर। तो ये गुडनेस के बेसिस पे हमने हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कर दिया, है ना। तो एक ऑर्डर आ गया उसमें, तो ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। तो डेटा कम से कम ऑर्डिनल स्केल पे होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, वो सॉरी नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे होना चाहिए। अगर इससे ऊपर के स्केल पे है तो भी कन्वर्ट करके ही हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सबसे पहला जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है काई स्क्वायर। ठीक है, काई स्क्वायर तो आपने सबने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि काई स्क्वायर बेसिकली क्या है। देखिए, काई स्क्वायर ये कंपेयर करता है कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का मिलना चाहिए, तो क्या जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने डेटा कलेक्शन किया तो क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही मिला जैसा हम अनुमान लगा रहे थे, जैसा हाइपोथेटिकल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, क्या वैसा ही मिला। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपने 50 लोगों से पूछा यस नो वाला, ठीक है, तो हाइपोथेटिकली आप ये मान सकते हैं कि 25 लोग यस कहेंगे और 25 लोग नो कहेंगे। अब अगर आप ये जानना चाहें कि क्या यस कहने वालों का नंबर नो कहने वाला के नंबर में जो यस करने जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मिला वो और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, उन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं। अंतर तो हो सकता है कि यस कहने वाले 25 की बजाय 23 हो और नो कहने वाले 25 की बजाय 27 हो, पर ये जो अंतर है ये चांस फैक्टर की वजह से हो सकता है, ये वास्तव में अंतर नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अगर है, हो सकता है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर ये बात 500 लोगों से पूछी गई हो और उसमें 2-3 का अंतर हो तो चलेगा, तो हो सकता, मतलब वहां पे इतना डिफरेंस हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अंतर सिग्निफिकेंट हो जाए। तो हमें बेसिकली ये देखना पड़ता है कि जो डिफरेंस हमें मिल रहा है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन में और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो अंतर मिल रहा है वो अंतर सिग्निफिकेंट है, मतलब उसको कितने प्रतिशत विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये अंतर पाया जाएगा। 95% विश्वास के साथ कम से कम कहा जाना चाहिए, है ना। तो उसका भी इसमें भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होना चाहिए 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम से कम होना चाहिए। तो अगर इस पे है तो हम कहेंगे कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो 95% बात सही सिद्ध होने की संभावना है, 5% गलत हो सकती है। तो हम मान लेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि वो अंतर है। और अगर अंतर नहीं है, चांस फैक्टर्स के विद इन है अंतर, तो अंतर नहीं माना जाएगा, बियॉन्ड है तो माना जाएगा। तो इसमें काई स्क्वायर में हम 3 प्रकार के जो हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक 5 पॉइंट स्केल पे एक आइटम बनाया, ठीक है, तो 100 लोगों से पूछा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या मान के चलेंगे कि 20 लोग कहेंगे
एक्सट्रीमली गुड, 20 कहेंगे गुड, 20 कहेंगे एवरेज, 20 कहेंगे पुअर और 20 कहेंगे वेरी पुअर। ये आपका हाइपोथेसिस थी, हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसमें पता चला कि 25 ने कहा वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, या 25 ने कहा या 25 ने कहा वेरी गुड, है ना, 20 ने कहा गुड। अब 30 रह गए, 30 में से 20 ने कहा पुअर और 10 ने कहा वेरी पुअर। तो क्या ये 25, 25, 20 और कितना बचा था, 20 और 10, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला है ये ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था, इन दोनों में कोई सार्थक अंतर है नहीं, है या नहीं है, ये काई स्क्वायर टेस्ट करके बता दे। तो काई स्क्वायर से आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस, इसका इस्तेमाल उसके लिए भी किया जाता है। ये जो टेस्ट है ये गुडनेस ऑफ फिट कहलाता है। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट क्या कहलाता है, बेसिकली कि आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि हमारा जो सैंपल है वो रिसर्च करने के लिए फिट है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होनी चाहिए और सैंपल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये बता सकता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिला है सैंपल में, वो सैंपल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, है ना। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस से टेस्ट हो सकता है। मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसीज को एनपीसी का इस्तेमाल करते हुए, और फिर वो नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका आया कि 100 के एन पे, है ना, नॉर्मलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी आती, इसमें कितनी आती, इसमें कितनी आती, इसमें कितनी आती, ये आप नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो। ठीक है, और आपके पास एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए काई स्क्वायर टेस्ट लगा करके। अगर काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट आ जाता है, वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सैंपल है वो नॉर्मल नहीं है। सैंपल सिलेक्शन कुछ गड़बड़ है। और अगर इनसिग्निफिकेंट आता है तो आपका सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप आगे की रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब दिस सैंपल इज फिट फॉर द रिसर्च, इसीलिए कहलाता है गुडनेस ऑफ फिट, है ना, कि एनफ गुड है, फिट है जो हमारा सैंपल है वो रिसर्च करने के लिए, या उस पे हम उस पॉपुलेशन पे रिसर्च करने के लिए ये सैंपल कितना फिट है, ये हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब हम कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे ओपिनियन आप टेस्ट करना चाहते हो कि इस पे महिलाओं और पुरुषों के ओपिनियन एक जैसे हैं या अंतर है, तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन महिलाओं का हो जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पुरुषों का हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों में कोई सार्थक अंतर है या नहीं है, ये तीसरे तरीके का जो काई स्क्वायर है इससे टेस्ट हो सकता है। तो जब आपको इस तरीके का कोई स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करना होता है जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे, ज्यादा कैटेगरीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं 2 कैटेगरीज हैं उन्हीं में। मान लीजिए आप ओपिनियन देखना चाहते हैं अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, है ना, इन 3 का ओपिनियन देखना चाहते हैं, है ना, 3 तलाक पे मान लीजिए आप ओपिनियन लेना चाहते हैं कि जो अनमैरिड मुस्लिम वुमेन है वो क्या राय रखती हैं, मैरिड मुस्लिम वुमेन क्या राय रखती हैं, और डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन क्या राय रखती हैं, क्या इनके राय में कोई फर्क है। ठीक है, तो इसको आप हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काई स्क्वायर का इस्तेमाल बेसिकली हम इसके लिए, मतलब काई स्क्वायर तो बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, टेस्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, आइटम सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, टेस्ट के जो जितने भी आपके टेस्ट जिनमें कि रेटिंग कराई जाती है ना, ऑर्डिनल स्केल पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, उन सब का इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन के लिए हमें काई स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज, काई स्क्वायर टेस्ट के बाद जो टेस्ट आता है, नेक्स्ट प्लीज, ये है एक रन टेस्ट। ये टेस्ट इस्तेमाल होता है, इससे आप पता कर सकते हैं, आपने कहा कि हमने रैंडम सिलेक्शन किया है, ठीक है, और कोई चैलेंज करता है न करे कि आपने रैंडम सिलेक्शन नहीं किया है, ऐसा आना नहीं चाहिए था रैंडम सिलेक्शन में, ऐसा क्यों आया,
तो उसको आप इससे टेस्ट करके अपनी बात को प्रूव कर सकते हो कि जो सिलेक्शन था वो रैंडम था। ठीक है, मतलब वो आपको आगे चैलेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने स्टैटिस्टिकली प्रूव कर दिया कि जो सिलेक्शन था वो रैंडम था। इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली ये रन टेस्ट कहलाता है। रन टेस्ट क्या होता है कि जब आप रेंडमली सेलेक्ट करते हो तो जो स्कोर्स हैं, मान लीजिए आप आपने एक वो ग्रुप, मान लीजिए एज के आपने 25 से लेके 75 साल के एज ग्रुप में कुछ लोगों को सेलेक्ट किया। अब वो सिलेक्शन रैंडम किया गया है या ऐसे करें जैसे हाँ, आप उसमें ठीक है आप सेलेक्ट कर रहे हो। अब ये सिलेक्शन रैंडम किया गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहला सिलेक्टेड है, ठीक है, वो व्यक्ति 25 साल का है तो अगला सिलेक्टेड 26 साल का है, फिर अगला 27 का है, फिर अगला 28 का है, फिर अगला 29 का है। इस तरीके के सिलेक्शंस आ रहे हैं तो ये एक रन कहलाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा रन, तीसरा रन, मतलब जो आपने डेटा का जो सेलेक्ट किया उनको आप जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किया उसी ऑर्डर में रख के रहने दीजिए। उनके प्री टेस्ट स्कोर्स के बेसिस पे रन्स तैयार करिए, कितने रन बनते हैं उसमें, है ना। मतलब रन का मतलब 25 के बाद अगला अगर 25 नहीं आ रहा है ना, तो मतलब अगला जो भी आ रहा है वो एक ही रन कहलाएगा और उसके कंटिन्यूएशन में अगला आ रहा है तो रन उतना लंबा होता चला। तो कितने रन हो सकते हैं? n के बराबर रन हो सकते हैं किसी में। रन कैसे बनाते हैं एक्चुअली, ये जब आप रन टेस्ट पूरा पढ़ेंगे, यहाँ इतना टाइम नहीं है कि पूरे टेस्ट को मैं ठीक तरीके से पढ़ा सकूं। तो नंबर ऑफ रन्स जो हैं ये उसमें रन बनाए जाते हैं, रन्स बनाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ रन अगर n के बराबर है तो भी ये माना जाएगा कि आपने रैंडम सिलेक्शन नहीं किया। ठीक है, आपने इंटेंशनली इस तरीके से सेलेक्ट किया कि मतलब एक ज्यादा वाला आ जाए, फिर एक कम वाला आ जाए, एक ज्यादा वाला आ जाए, मतलब आपने चांस नहीं दिया, आपने पर्पसिवली सेलेक्ट किया कि अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये रैंडम जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, नंबर ऑफ रन्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप बाइज्ड हो जाते हैं, यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, फिर इतना यहाँ से सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन कर लिया, तो वो रन्स एक साथ बनते हैं, एक रन में कई सारे मेंबर्स आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ रन्स कम हो जाते हैं। तो एक ये रन सैंपल जो टेस्ट का है उसका एक टेबल होती है, हर स्टैटिस्टिक्स की किताब में दी रहती है। उस टेबल को देख करके आप देखिए कि इतना अगर n है तो नंबर ऑफ रन्स कितने से कितने के बीच में होने चाहिए। जैसे 20 अगर n है तो नंबर ऑफ रन्स मैक्सिमम 17 होना चाहिए और मिनिमम शायद अब टेबल देखनी पड़ेगी 3 या 4 ऐसा कुछ है वो होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम रन है तो डिस्ट्रीब्यूशन वो रैंडम सिलेक्शन है, इससे ज्यादा रन है तो रैंडम सिलेक्शन नहीं है। तो ये रन टेस्ट के माध्यम से आप इसका अपना सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं कि सैंपल रैंडम है या नहीं। ठीक है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स बेसिकली पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के assumptions को टेस्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, assumptions फुलफिल नहीं होते हैं तो फिर आप इसी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके आगे इंटरप्रिटेशंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक होता है साइन टेस्ट। देखिए साइन टेस्ट क्या है, ये साइन टेस्ट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है जनरली वन सैंपल या पेयर टी टेस्ट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे। वन सैंपल टेस्ट क्या होता है कि आप जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो तो आपके कई तरीके के डिजाइन होते हैं जिसमें सिंगल ग्रुप डिजाइन होता है। सिंगल ग्रुप डिजाइन में आप क्या करते हो कि पहले ग्रुप लेते हो, उस पर प्री टेस्ट लेते हो, उसको ट्रीटमेंट देते हो, फिर उसका पोस्ट टेस्ट लेते हो। ठीक है, वो सिंगल ग्रुप डिजाइन कहलाता है। ठीक है, अब सिंगल ग्रुप डिजाइन में क्या होगा कि प्री टेस्ट, फिर ट्रीटमेंट, फिर पोस्ट टेस्ट। अब चेंज आना चाहिए, अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसका कुछ असर है, और चेंज कैसा होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए, चेंज सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे एक के बढ़ गए, एक के कम हो गए, एक के बढ़ गए, एक के कम हो गए, कुछ के बढ़े, कुछ के कम हुए, कुछ के बढ़े, कुछ के कम हुए, तो आपका जो ट्रीटमेंट है इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। ज्यादातर लोगों के बढ़े तो इफेक्टिव माना जाएगा, ज्यादातर लोगों के कम हो तो इफेक्टिव माना जाएगा। जब मान लीजिए स्ट्रेस रिडक्शन के आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो अगर स्ट्रेस पे स्कोर पहले से कम हो जाता है ज्यादातर लोगों का, तो आपका जो ट्रीटमेंट है इफेक्टिव माना जाएगा। एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ाने के लिए कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो
ज्यादातर बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ता है तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव माना जाएगा, और कुछ का बढ़ता है, कुछ का कम होता है, कुछ का बढ़ता है, कुछ का कम होता है, तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से ये कैसे पता लगेगा कि सिंपली आप ऐसे पता कर सकते हो, नंबर बढ़े तो प्लस कर दो, कम हुए तो माइनस कर दो। तो प्लस और माइनस का नंबर अगर इक्वल आ रहा है मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रैंडम चेंजेस आ रहे हैं, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, तो आप क्या मानोगे आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है? अगर उतने ही प्लस हो जाते हैं, उतने ही माइनस हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली बराबर, 50 लोगों को आपने वो सैंपल में लिया, ठीक है, 24 लोगों के नंबर बढ़ गए और 26 के कम हो गए, तो आप क्या मानोगे कि जो असर है वो आपका ट्रीटमेंट कोई असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? बताइए, कोई भी बोलिए, एनीवन? आपने एक ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, आपने एक इंजेक्शन लगाया किसी को बुखार उतारने के लिए, 50 लोगों को इंजेक्शन लगाया जिनको बुखार था, ठीक है, 25 लोगों का बुखार उतर गया, 25 का नहीं उतरा, 24 का उतर गया, 26 का नहीं उतरा, तो आप क्या कहोगे? टेस्ट आपका इफेक्टिव है कि नहीं है? एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ाना चाहते थे, 25 का बढ़ा, 25 का कम हो गया, तो क्या एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ा आप ये कहेंगे? No, sir. या एकेडमिक अचीवमेंट कम हो गया ये कहेंगे? ये कह सकते हैं? एकेडमिक अचीवमेंट में कोई फर्क नहीं आया ये कह सकते हैं? ये कह सकते हैं, मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। तो ये प्लस और माइनस के साइन लगाए जाते हैं इसमें, जब स्कोर बढ़ता है तो प्लस का साइन लगाते हैं और स्कोर कम होता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस के साइन जो कम होता है ना, जितने साइन जो भी इनमें अगर एक साइन ज्यादा है और एक साइन कम है तो इसका मतलब इफेक्ट माना जा सकता है। ज्यादा प्लस के ज्यादा है तो पॉजिटिव इफेक्ट है, माइनस के ज्यादा है तो नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव तो वो आपको कॉन्सेप्ट आपका फेनोमेना बताएगा, आपका रिसर्च डिजाइन बताएगा, आपका जिस वेरिएबल को आप मेजर कर रहे हो वो बताएगा कि ये बढ़ने पे अच्छा है या खराब है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो प्लस माइनस के साइन में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, कितने प्लस के सिग्नेचर होने चाहिए 10 में से कम, या कितने माइनस के सिग्नेचर साइन होने चाहिए कम से कम, इसके बेसिस पे उनका इनके साइंस के को हम टेस्ट कर, वो जो साइन टेस्ट की टेबल है उसमें देख करके पता करते हैं कि क्या इतने प्लस इस एन पे सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट है तो हम कहते हैं कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्कोर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस माना जाता है। तो ये साइन के बेसिस पे होता है, तो सिंपली इसमें प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए साइन टेस्ट कहलाता है। नल हाइपोथेसिस क्या बनती है? नल हाइपोथेसिस फॉर द साइन टेस्ट इज दैट डिफरेंस बिटवीन मीडियन से जीरो, ठीक है। मीडियन से ऊपर, इसमें जो साइन टेस्ट है ये सिंगल ग्रुप के लिए भी होता है ना, और मतलब हमारे पास दो ग्रुप भी हो सकते हैं जहां पे पेयरिंग की गई हो, दो से ज्यादा ग्रुप्स भी हो सकते हैं, पेयरिंग की गई हो। मतलब पेयरिंग में क्या होता है कि जब हम ग्रुप बनाते हैं तो एक हायर स्कोरर इधर रख देते हैं, एक उधर रख देते हैं, एक हायर स्कोरर इधर रख देते हैं, एक उधर रख देते हैं, 3 ग्रुप बनाते हैं तो एक इसमें और एक इसमें ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस के साइन हैं इसके बेसिस पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो साइन टेस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैच्ड पेयर साइन टेस्ट है विल्कॉक्सन, है ना। इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये बेटर टेस्ट माना जाता है साइन टेस्ट से। साइन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि किसी के मान लीजिए पहले 21 स्कोर था और बाद में 49 हो गया तो प्लस का एक साइन मिलेगा, और पहले 21 था बाद में 22 हो गया तब भी प्लस का एक साइन मिलेगा। मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस आए, ठीक है, तो प्लस का साइन मिलता चला गया, साइन तो मिल गए और आपका स्टैटिस्टिक्स कह देगी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस बहुत माइन्यूट आया। हो सकता है कि मीन को लेकर के अगर हम मीन नॉन पैरामेट्रिक की जगह पैरामेट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, बहुत कम मीन में डिफरेंस आता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता वो, लेकिन क्योंकि साइन है
वो मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा है, खाली डायरेक्शन देख रहा है साइन टेस्ट। तो वो इसकी लिमिटेशन को ये टेस्ट दूर करता है साइन टेस्ट। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो डिफरेंस है, मतलब पहले स्कोर था और अब स्कोर था, अगर बढ़ा तो कितना बढ़ा, कम हुआ तो कितना कम हुआ, डिफरेंस जो है वो मैग्नीट्यूड नोट करते हैं। ठीक है, फिर इस डिफरेंस की रैंकिंग करते हैं कि सबसे ज्यादा डिफरेंस आया उसको हम हायर रैंक देते हैं, सबसे कम डिफरेंस आया उसको पहला रैंक देते हैं। तो ऐसे रैंकिंग करते हैं और इस रैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए हम कंपेयर करते हैं कि प्री टेस्ट में रैंक्स कितने थे, सिग्मा क्या था, पोस्ट टेस्ट में रैंक्स का सिग्मा क्या था। ठीक है, और इसके बेसिस पर जब हम, मतलब ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है साइन टेस्ट का, जो केवल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। तो साइन टेस्ट जहां इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बेहतर ये है कि विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन टेस्ट इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। एक है मीडियन टेस्ट। देखिए, अभी हमने साइन टेस्ट देखा था, ये कोरिलेटेड ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीडियन टेस्ट है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और कोरिलेटेड ग्रुप्स में क्या फर्क है? देखिए, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स क्या हैं, जैसे हम मेल फीमेल में कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, या हम अर्बन रूरल में कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट ग्रुप मतलब कि एक मेंबर अगर इस ग्रुप का मेंबर हो सकता है तो दूसरे ग्रुप का नहीं हो सकता, वो उसमें नहीं जाएगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप का मतलब ये है कि अगर मेल है तो मेल वाले ग्रुप में ही आएगा, फीमेल के ग्रुप में नहीं जा सकता। ठीक है, आप कोई मान लीजिए डेटा ऐसा इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इन बच्चों का एकेडमिक अचीवमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये तीनों चारों इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है ना। तो इस तरीके के इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। कोरिलेटेड ग्रुप्स दो तरीके के होते हैं खास तौर पे। एक तो वो ग्रुप होता है जहां पे हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं, है ना, जहां पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं कि एक ग्रुप है, सिंगल ग्रुप डिजाइन है, तो डिपेंडेंट या कोरिलेटेड ग्रुप्स कहलाते हैं। इसी तरीके से जब हम पेयरिंग करते हैं, एक हायर स्कोरर, एक 85 वाला इधर, एक 85 वाला दूसरे ग्रुप में, एक 86 वाला, एक 84 वाला एक ग्रुप ए में, एक 84 वाला बी में, एक 80 वाला ए में, एक 80 वाला बी में, ये पेयरिंग कहलाते हैं। इस तरीके के ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? वो कोरिलेटेड ग्रुप्स कहलाते हैं। तो जब कोरिलेटेड ग्रुप्स हैं तो हम पहले वाले टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट है तो मीडियन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियन टेस्ट क्या बताता है बेसिकली कि दो समूहों का मीडियन एक जैसा है, एक ही मीडियन है कि नहीं। एक ही मीडियन है तो दोनों एक ही जनसंख्या से लिए गए, इसका मतलब दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई सार्थक अंतर। और मीडियन अलग अलग है तो ये माना जाता है कि दोनों अलग अलग जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका मतलब दोनों में अंतर सार्थक है। तो मीडियन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ये एक प्रकार का काई स्क्वायर इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें हम दो वर्गों में बांट देते हैं एक ग्रुप के मेंबर्स को, एक मीडियन से नीचे और दूसरे मीडियन या इससे ऊपर वाला, दो समूह हो गए। इसी तरीके से दूसरे समूह को हम मीडियन से नीचे या मीडियन से ऊपर, मीडियन या इससे ऊपर, ऐसे करके हम दो समूह में बांट देते हैं। तो हमारे पास 2 into 2 into 2 की एक कंटिंजेंसी टेबल बन जाती है और काई स्क्वायर टेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मीडियन टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हों। हाइपोथेसिस यहाँ पे बनती है कि जो दोनों जो नल हाइपोथेसिस बनेगी, टू मीडियंस आर इक्वल, है ना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीडियंस। और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? मीडियन 1 इज हायर देन द मीडियन 2। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी? there is significant difference between two medians। ठीक है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में फर्क मालूम है? नल हाइपोथेसिस कहती है there is no significant difference, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है there is significant difference। अब अल्टरनेटिव दो तरीके की हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल हो सकती है और डायरेक्शनल हो सकती है। नॉन डायरेक्शनल कहती है there is no significant difference, और नॉन डायरेक्शनल कहती है mean 1 या median 1 is higher than the median 2, वाइस वर्सा मीडियन 2 इज हायर देन दी मीडियन 1। इस तरीके से कहती है तो डायरेक्शनल कहलाएगी। कोई अंतर है तो नॉन डायरेक्शनल कहलाएगी अल्टरनेटिव, और कोई अंतर नहीं है तो नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। ठीक है, तो ये मीडियन टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट प्लीज, है ना,
एक अब आता है मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है। वैसे मीडियन टेस्ट का इस्तेमाल भी हम टी के जगह पे कर सकते हैं कि टी भी क्या करता है, कंपेयर करता है दो समूहों को। इसी तरीके से मीडियन टेस्ट भी दो समूहों को कंपेयर करता है, वो मीडियन को कंपेयर कर रहा है, हम मीन को कंपेयर करते हैं मीन टेस्ट में, वो टी टेस्ट में। तो टी टेस्ट का सब्स्टिट्यूट वो भी है, लेकिन मैन विटनी ज्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो अगर आप टी टेस्ट लगाना चाहते हैं और टी टेस्ट लगाने के एजम्पशंस फुलफिल नहीं हो, एजम्पशंस वही 4 हैं मुख्य एजम्पशंस। कौन कौन से अभी मैंने बताए थे 4 एजम्पशंस, क्या क्या हैं बताइए, कोई भी बताइए। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के 4 एजम्पशंस क्या बताए थे भाई? वर्कशॉप है ये, लेक्चर दे रहे हैं हम इसमें। Normal distribution, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, homogeneity in variance, probability, होमोजेनिटी वेरिएंस, हाँ होमोजेनिटी वेरिएंस, हाँ and large sample, लार्ज सैंपल, एक और रह गया and random selection, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, probability sample. Yes. ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो ये 4 एजम्पशंस जब पूरे नहीं होते हैं तो हम टी टेस्ट नहीं लगाना चाहिए कायदे से, ठीक है। बहुत स्मॉल सैंपल हो, स्क्यूड हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिले आपको, ठीक है, तो नहीं लगाना चाहिए। तो जब टी टेस्ट लगाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं तो हम फिर मैन विटनी लगाते हैं। मैन विटनी इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ टी टेस्ट, है ना। जो पैरामीट्रिक में टी टेस्ट है वही नॉन पैरामीट्रिक में मैन विटनी टेस्ट है, ठीक है। ये ऑथर्स के नाम पर है इसलिए मैन विटनी टेस्ट कहलाता है। विल्कॉक्सन ने इसमें इनिशियली काम किया था, तो विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी कहलाता है, ठीक है। तो मैन विटनी यू टेस्ट, इसमें यू टेस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे यू की गणना की जाती है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है कि रैंक्स, सम ऑफ रैंक्स पर बेस्ड है ये, है ना। कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो स्कोर्स हैं दोनों समूहों के, उनका कंबाइंड रैंक निकाल लेते हैं, ठीक है। उनको कंबाइंड रैंकिंग दे देते हैं कि पहले समूह के स्कोर्स, दूसरे समूह के स्कोर्स, उनको कंबाइंड रैंकिंग दे देते हैं। कंबाइंड रैंकिंग देने के बाद फिर हम जिस समूह से रिलेटेड वो स्कोर था उस रैंक को उधर लिखते हैं। जैसे 25 स्कोर था, उसको पहला रैंक मिला, तो 25 जिस कॉलम में लिखा गया उस कॉलम के स्कोर्स में 1 लिखा गया, तो उसमें हम हर स्कोर को क्या रैंक मिला है वो उस स्कोर के सामने लिख देते हैं। तो उस स्कोर की जगह अब हमारे पास रैंक आ जाते हैं उस ग्रुप के लिए, ठीक है। उस ग्रुप के रैंक्स को सम कर लेते हैं और दूसरे ग्रुप के रैंक्स को सम कर लेते हैं, और फिर हम ये डिफरेंस देखते हैं कि क्या दोनों के जो रैंक, सम ऑफ रैंक्स है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। अगर उसमें अंतर सार्थक नहीं है तो हम मतलब ये देखते हैं कि रैंक्स वैसे बराबर आने चाहिए। अगर एक ही जनसंख्या से दोनों सैंपल्स लिए गए हैं तो सम ऑफ रैंक्स बराबर आना चाहिए, लेकिन सम ऑफ रैंक्स में डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस आता है तो कितना डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, कितना डिफरेंस सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ये चीज मैन विटनी यू टेस्ट हमें बताता है कि ये सम ऑफ रैंक्स पे बेस्ड है ना। ये हमें ये बताता है, इसलिए इसको मैन विटनी यू टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इसमें थोड़ा सा, अच्छा 1 मिनट पे इसी पर रहिए। यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या टेस्ट कहती है, नल, ये एचओ का मतलब क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, और एच ए का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ क्या टेस्ट करते हैं, मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, वाइस वर्सा मीडियन 1 इज इक्वल टू मीडियन 2, ठीक है। तो अगर हमारे पास रैंक है ऑलरेडी तो रैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो स्कोर्स को हमें रैंक में बदलना पड़ता है, तो भी वहां में डेफिनेटली मीन को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम पहले उनको कन्वर्ट कर रहे हैं ना रैंक्स में। तो यहाँ पे HO जो बन सकती है, मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2, या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीडियंस। ये हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं HO। HA इसकी जगह इसका बदल जाएगा रूप, मीन 1 इज नॉट इक्वल टू मीन 2, ठीक है।
ये HA हो जाएगा और इस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे U की गणना की जाती है, इसलिए U टेस्ट कहलाता है। ये U1 कैलकुलेट कर लेते हैं और U2 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फॉर्मूले बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। पहले ग्रुप का n, दूसरे ग्रुप का n, n1 n2 हो गए, ठीक है, प्लस n1 इंटू n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा r, जो बताया था ना मैंने, सिग्मा रैंक्स निकालते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो U1 और U2 में से जो कम होता है वो U कहलाता है, और वो U टेबल में देख लेते हैं कि इतने n के बेसिस पर U की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर वो वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो हम अगर वो वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो अंतर सार्थक है, और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो अंतर असार्थक है। कि तो मैन विटनी यू टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट तो बेसिकली नेक्स्ट, हाँ ठीक है नेक्स्ट। मैन विटनी यू टेस्ट बेसिकली क्या करता है, ये टेस्ट करता है कि मैं टाइम देख लूं कितना, ठीक है, मैं लेक्चर अपना करीब 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा, देन इट विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस प्लीज, ठीक है। और क्वेश्चंस आप कैसे भी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, नॉट ओनली ऑन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, यू मे आस्क व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। मैं ये नहीं क्लेम करता कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो ये एक अगला टेस्ट आता है, ये कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट कहलाता है। ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है, कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट, और इसका वाइडली इस्तेमाल होता है ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है। आप जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाने के लिए जो assumption टेस्ट करते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, तो उसके लिए ये टेस्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, केएस टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट का इस्तेमाल करके आप टेस्ट कर सकते हो कि वेदर योर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मिला है वो नॉर्मल है। काई स्क्वायर से भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट ये ज्यादा बेहतर माना जाता है, कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्या कंपेयर करता है, दिस कंपेयर्स दिस टेस्ट, ये टेस्ट करता है, कंपेयर्स योर डेटा with a known distribution and let you know if they have the same distribution. मतलब with a known distribution मतलब ये कंपेयर करता है कि क्या जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो हाइपोथेटिकल जो काई स्क्वायर करता है वो ये काम करता है, लेकिन काई स्क्वायर से बेहतर माना जाता है इसको, ठीक है। तो आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आप सिंगल सैंपल है आपके पास, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि ये सैंपल अगर नॉर्मल सैंपल रहा होता तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलता, अगर ये सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होता तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलता। तो अगर दोनों में एक जैसे आते हैं, मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, तो आप कह सकते हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। और अगर सिग्निफिकेंट जो इसकी ये कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट की वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ जाती है, तो आप कह सकते हो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, और आप आगे चल के उस पर वो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ये कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट। 2 सैंपल टेस्ट भी होता है, जैसे 1 सैंपल टेस्ट है, जैसे 2 सैंपल टेस्ट है, मेल फीमेल, जैसे काई स्क्वायर में हम करते हैं, मेल फीमेल को कंपैरिजन करना चाहते हैं 2 सैंपल्स को आपस में, तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोल्मोगोरोव-स्मिर्नोव 2 सैंपल टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये क्रुस्कल-वालेस टेस्ट है, ठीक है। क्रुस्कल-वालेस टेस्ट आप एनोवा इस्तेमाल करते हो टी टेस्ट में, जब हमारे पास 2 मीन होते हैं कंपेयर करने के लिए तो हम एनोवा इस्तेमाल करते हैं, वो सॉरी टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, और 2 से ज्यादा मीन होते हैं तो हम 1 वे एनोवा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए एनोवा कई तरह का होता है, एक 1 वे एनोवा होता है, एक 2 वे एनोवा होता है, 3 वे एनोवा होता है। 1 वे एनोवा क्या टेस्ट करता है, एक वेरिएबल का इफेक्ट देखता है ना, एक वेरिएबल के डिफरेंट लेवल्स का इफेक्ट देखता है डीवी पे। एक आईवी होता है, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और एक डीवी होता है। जब 2 आईवी हो जाते हैं और एक डीवी होता है तो 2 वे एनोवा कहलाता है। मतलब इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का इफेक्ट आप मान लीजिए देखना चाहते हो
इनकम पे, कि क्या इंटेलिजेंट लोग और क्रिएटिव लोग ज्यादा आमदनी, पैसा ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। या आप एकेडमिक अचीवमेंट पे देखना चाहते हैं कि क्या क्रिएटिव, तो आप क्रिएटिविटी का इफेक्ट देख सकते हो वन वे अनोवा से। आप इंटेलिजेंस का इफेक्ट देख सकते हो एकेडमिक अचीवमेंट पे वन वे अनोवा से। और टू वे अनोवा से आप इन दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट देख सकते हो, क्या दोनों मिलकर के एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो टू वे अनोवा हो जाता है। इसी तरीके से 3 वेरिएबल्स जब हो जाते हैं हमारे पास और उनका इफेक्ट हम एक वेरिएबल पे देखते हैं, वो एक वेरिएबल पे देखते हैं, तो 3 वे अनोवा हो जाता है। IV3 और DV1, तो 3 वे अनोवा हो जाता है, ठीक है। तो इस अनोवा, ये यहाँ पे एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि हमारे पास जो अब तक मैंने पढ़ा है किताब में, कुछ जगह पे दिया था कि टू वे अनोवा का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन जब मैंने उस टेस्ट को पढ़ा तो वो कहीं भी क्या हुआ, मैं, am I audible? Yes, sir. Yes, you're audible, sir. So because of some network issue, I think the PPT have got unshared. We'll continue with that. So just a second. अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो क्रुस्कल, ये क्या नाम है, एच टेस्ट है, ये क्या नाम चल रहा था, मीटिंग टेस्ट एंड विटनी के बाद क्रुस्कल वॉलेस एच टेस्ट, ठीक है। ये वन वे एनोवा है, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जहां पे आप लगाते हो पैरामीट्रिक में, मतलब एक वेरिएबल का, एक IV का एक DV पे इफेक्ट आप देखना चाहते हो, और वो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास 3 से अधिक मध्यमान होते हैं, तो उनमें तुलना करने के लिए हम वन वे अनोवा लगाते हैं। 3 या 3 से अधिक, मतलब 2 से अधिक होते हैं तो हम लगाते हैं। 2 पर तो T-टेस्ट लग जाता है, ठीक है। 3 मध्यमानों में तुलना करनी तो वन वे अनोवा लगाते हैं, और वन, अगर वो F रेशियो जिसको कहते हैं, और अगर वो सिग्निफिकेंट आ जाता है तो फिर हम पोस्ट हॉक टेस्ट लगाते हैं, जो बस T है बेसिकली, फिर से हमें T लगाना पड़ता है, तो हम उससे दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये काम अगर वन वे अनोवा के assumptions पूरे नहीं हो पा रहे हैं, then you can use this Kruskal-Wallis H test, ठीक है। ये वन वे अनोवा का सब्स्टिट्यूट है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है यदि, मतलब k नंबर ऑफ सैंपल्स में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। k कई भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनमें आप कंपैरिजन कर सकते हो Kruskal-Wallis H टेस्ट से, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और ना वो चीज फिर हम पूरे एज ए गेस्टाल्ट व्यू आपको नहीं दे पाएंगे फिर, तो इसलिए अगर इन स्टैटिस्टिक्स को आप लगाते हैं तो ये एक चीज समझ लीजिए कि ये बहुत सिंपल है, बहुत इजीली लगाई जा सकती हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूले होते हैं इनके, बहुत आसान इंटरप्रिटेशन होता है, टेबल देखना बहुत आसान होता है, मतलब ये मैनुअली आसानी से लगाई जा सकती है, ठीक है। SPSS में भी ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, वहां पे भी आप लगा सकते हो, यूज करके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लगा सकते हो। मतलब ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कंपैरेटिवली आसान होती हैं पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स से, है ना। और इससे ऊपर की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यहाँ पे, मतलब मल्टी वे अनोवा नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है नॉन पैरामीट्रिक में, इवन टू वे थ्री वे अनोवा का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक टेस्ट इसमें किताबों में लिखा है ना, इसको उन्होंने फ्राइडमैन, ठीक है, फ्राइडमैन का टेस्ट है, फ्राइडमैन टेस्ट जो है उसको किताबों में कुछ जगह पे लिखा है कि ये टू वे अनोवा का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मैंने उसको पूरे टेस्ट को पढ़ा, कहीं भी वो टू वे अनोवा का सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो देखिए, टू वे अनोवा का सब्स्टिट्यूट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोई टेस्ट इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं देख पाता, और कोई भी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं देख पाता है। डायरेक्ट इफेक्ट देख सकता है, एक वेरिएबल का एक वेरिएबल पे इफेक्ट देख सकता है, दो वेरिएबल का एक वेरिएबल पे नहीं देख सकता है, दो वेरिएबल्स का कंबाइंड दो वेरिएबल्स पे नहीं देख सकता है। तो इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स यहीं तक लिमिट हो जाती है बेसिकली, जहां तक मुझे जानकारी है। हो सकता है इसके अलावा हो, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है वन वे अनोवा के सब्स्टिट्यूट तक आपके पास ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर आप एडवांस रिसर्च और करना चाहते हैं देन यू हैव टू। और दूसरी बात यह है कि जब आप बहुत अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको assumptions फुलफिल करने चाहिए और पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और डेटा कलेक्शन का तरीका भी वही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि आपको कम से कम डेटा इंटरवल स्केल पे मिले, है ना। ये तब है जब आपकी मजबूरी है ना, आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो, कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं, या कुछ रिसर्च केसेस ऐसे हो सकते हैं
कि जिनमें कि नॉन पैरामीट्रिक की बेस्ट सूट करेगी, तो आप नॉन पैरामीट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्रुस्कल-वालिस एच टेस्ट में जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे यू की गणना करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, sir. अच्छा नहीं, बैक में जाइए। ये इसमें यू गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, एच है, हाँ यू नहीं, यू लिखा भी नहीं है, यू कहाँ से पढ़ रहा था मैं। ये एच टेस्ट कहलाता है, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट करता है पॉपुलेशन मीडियंस आर इक्वल। अनइक्वल का मतलब नल हाइपोथेसिस हो गई, कोई सार्थक अंतर नहीं है, और नॉट इक्वल मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई, सार्थक अंतर है। तो HO इसमें पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, और HA या H1, ठीक है, H1 जनरली HA इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए, तो HA बनती है पॉपुलेशन मीडियंस आर नॉट इक्वल। तो 3 मीडियंस, 4 मीडियंस, 5 मीडियंस वो एक जैसे हैं या नहीं है, ये टेस्ट कर देता है, ठीक है। या 3 वो एक वाइस वर्सा है, ये टेस्ट कर देता है कि इक्वल हैं। अगर आपने ये हाइपोथेसिस बनाई है तो वो भी टेस्ट कर सकता है, और अगर ये हाइपोथेसिस बनाई है नॉट इक्वल तो वो भी टेस्ट कर सकता है। एक ही बात है, कहने का फर्क है खाली, है ना, रिजेक्शन सिलेक्शन एरिया का फर्क आ जाता है, बस ये फर्क आ जाता है इसमें। तो ये सिग्निफिकेंट अगर आता है तो फिर हमें पोस्ट हॉक टेस्ट लगाना पड़ता है, और इसका पोस्ट हॉक कुछ नहीं है, पोस्ट हॉक इसका मैन विटनी यू टेस्ट है और कोई नहीं, ठीक है। इसमें मैंने भी कोशिश करी पोस्ट हॉक टेस्ट इसका है जानने की कोशिश की, क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मैन विटनी यू लगाना पड़ेगा फिर आपको दो में। तो आप अगर एनोवा लगाना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्रुस्कल-वालिस एच टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। एक अगला टेस्ट है, नेक्स्ट प्लीज, ये फ्राइडमैन टेस्ट है। ये भी कुछ जगह पे इसको लिखा है अल्टरनेटिव ऑफ टू वे एनोवा, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट को पढ़ा है जितना, तो कहीं भी टू वे एनोवा का काम नहीं करता, ये वन वे एनोवा का ही काम करता है। ये केवल इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स देखता है, ठीक है। मतलब इसमें बस ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका अलग है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स में थोड़ा आसानी से किया जा सकता है ना, कंपैरेटिवली। तो ये टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी वन वे एनोवा का ही सब्स्टिट्यूट है ना। तो ज्यादा इस्तेमाल एच टेस्ट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा हो जाए तो आप फ्राइडमैन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर, दिस इज ओवर। अब आप कुछ अगर सवाल करना चाहें स्टैटिस्टिक्स में जो मैंने बोला है उस पे, एनी of your problem related to statistics. Yes, sir. So now, sir, we would like to open the house for question and answer session. And in the chat box, I can see some questions. So, Yes, Himanshi, can you read them out? Yes, sir. So the first question is, how can we compare between parametric and non-parametric tests in application data? In application data, I'm not able to understand what the actually researcher wants to ask. मतलब पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या कंपेयर कर सकते हैं, तो ये पैरामेट्रिक जो है वो सब्स्टिट्यूट है और लोअर डिग्री का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स आपको पैरामेट्रिक से मिलेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स, उतने स्ट्रांगली जनरलाइज करने वाले रिजल्ट्स आपको नॉन पैरामेट्रिक से नहीं मिलेंगे, पहली चीज। तो पैरामेट्रिक टेस्ट पावरफुल हैं, टी टेस्ट, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे मैन विटनी यू टेस्ट को, तो टी टेस्ट इज मोर पावरफुल देन मैन विटनी यू टेस्ट। एनोवा को एच टेस्ट से कंपेयर करोगे तो दैट इज मोर पावरफुल, है ना। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, मतलब उसमें जो विश्वास का स्तर है 95% अगर विश्वास के साथ कह रहे हो तो 95% विश्वास के साथ इसको लागू किया जा सकता है, जनरलाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे सैंपल का सिलेक्शन भी रैंडम होता है, प्रोबेबल होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है, उस पे किया जाता है ये टेस्ट। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, ये श्योर नहीं हो पा रहा है, तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली आपके, इनका जनरलाइजेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता है। करते हैं जनरलाइजेशन, लेकिन इतना पावरफुल जनरलाइजेशन नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, जिस सैंपल पे आप स्टडी कर रहे हो उस सैंपल पे जो रिजल्ट्स दे रहा है वो ठीक है, ये इंश्योर करता है। Thank you, sir. Yes. So we move on to this next question. Yes, So please. for one research, can we do both parametric and non-parametric tests
in order to strengthen the validity of the data? देखिए, जब आप पैरामीट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉन पैरामीट्रिक का इस्तेमाल उसके assumptions को उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। assumptions को जैसे मैंने बताया था कि probability sampling की है कि नहीं की है, random sampling की है कि नहीं की है, तो run test लगा दीजिए। probability sampling की है, वो normal distribution है कि नहीं है, तो उसके लिए आप chi-square लगा सकते हैं। और इसका goodness of fit में एक और मैंने आपको भी टेस्ट बताया था, ठीक है। goodness of fit में कौन सा बताया था, अभी नाम भूल गया, मेरे जरा मेमोरी थोड़ी ऐसी है। गुडनेस ऑफ फिट का एक और टेस्ट बताया था ना, विल्कॉक्सन, कौन सा बताया था, तो वो जो टेस्ट हैं अभी मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिए। तो मतलब assumptions टेस्ट करने के लिए पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक ही चीज को अगर आपने अगर assumptions पूरे हो रहे हैं और पैरामीट्रिक टेस्ट से अगर वो हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, तो वो माना जाएगा। नॉन पैरामीट्रिक के बेसिस पे सिलेक्शन रिजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा फिर। तो इसलिए आप स्ट्रेंथन नहीं कर सकते कि आप इससे भी आपने प्रूव कर दिया और नॉन पैरामीट्रिक से भी प्रूव कर दिया। तो जो प्रूव पैरामीट्रिक से हो रहा है वो ज्यादा सही माना जाएगा, नॉन पैरामीट्रिक की फिर जरूरत नहीं। And there is no point, going in for non-parametric then. Yes, there is no point. If assumptions are being fulfilled, then you should use parametric statistics. Right. Thank you, sir. So the next question is, if we don't have a graph, how do we figure out if our data is normally distributed or not? ये देखिए, chi-square टेस्ट में मैंने बताया आपको, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, तो chi-square टेस्ट आपको बताता है कि chi-square की वैल्यू सिग्निफिकेंट आई अगर, है ना, तो इसका मतलब ये है कि दोनों, मतलब जो हमारा हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हाइपोथेटिकल है और जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दोनों अलग अलग है। कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको chi-square की वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से आपको और एक मैंने आपको टेस्ट बताया था, एक मिनट अभी मैं बताता हूँ, केएस टेस्ट। हाँ, केएस टेस्ट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो केएस टेस्ट में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो डी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, डी या जेड निकालते हैं। तो अगर स्मॉल सैंपल है तो डी निकालते हैं, तो डी अगर सिग्निफिकेंट है, ठीक है, डी अगर सिग्निफिकेंट है तो अंतर अलग है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर डी इनसिग्निफिकेंट आता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइकवाइज जेड जो है, अगर इनसिग्निफिकेंट आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है ना, अंतर नहीं है, और सिग्निफिकेंट आता है तो अंतर है। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ से एक लेमैन भी देख सकता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। तो ग्राफ प्लस ये स्टैटिस्टिकल वैल्यूज दोनों आप शो करें तो ज्यादा अच्छा है। Thank you, sir. The next question is, for which scales do we need to use the non-parametric statistic? शुरू में बताया था मैंने, दो ही तरीके के स्केल्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। इन पे हम नॉन पैरामेट्रिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरामेट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकते। यहाँ पे हम खाली मीडियन के कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वी कांट कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जहाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो बेसिक चीजें होती हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, है ना, तो पैरामीटर्स का जो अनुमान लगाया जाता है उसके लिए एसडी बहुत जरूरी होता है। बिना एसडी के न तो आप मीन की सिग्निफिकेंस टेस्ट कर सकते हैं, ना स्टैंडर्ड डेविएशन की सिग्निफिकेंस टेस्ट कर सकते हैं, ना मीन डिफरेंस की सिग्निफिकेंस टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते। तो जब आपके पास स्कोर्स नहीं है तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आप नहीं जा सकते, ठीक है। जब आपके पास रैंक है या खाली फ्रीक्वेंसीज हैं तो आप नॉन पैरामेट्रिक लगाइए, इससे ऊपर है तो अजम्पशंस पूरे हो रहे हैं तो पैरामेट्रिक लगाइए। Okay, so thank you so much, sir, for your valuable responses, and thank you so much to our wonderful audience also for their active participation. Now with this, we would like to invite our head of institution, Professor Dr. Alka Muddal ma'am, for the vote of thanks. Thank you, Yachna. Thank you so much. Thank you, Arushi. Very wonderfully coordinated. And we are so grateful to Professor Chandel, sir. सर, आपने जितना यहाँ पर हमें समय दिया है, मुझे पता है बहुत कम है स्टैटिस्टिक्स के लिए
बहुत So बढ़िया। whatever like you could manage, itne time mein, itne samay mein, so I think you have done justice to it. And but definitely, sir, will be coming back to you because आप expert हैं और इसमें तो stats में तो I think students are going to digest it and later they are going to come up with their problems. Because Yes, they are at a stage जहाँ पर वो लोग अपना problem select कर रहे हैं and they're deciding on sampling, they're deciding on so many things, and I think the researchers have also joined in and they would also be coming up with their problems. So I would request, we can have another session with you if yes, you permit, definitely, sir. definitely, So definitely. My with the pleasure. problems, and then definitely, they can be benefited much. Sir, on behalf of our management, Amity University, and on like our honorable founder president, sir, our very dynamic and very helpful, Professor Balwinder Shukla ma'am, our honorable vice chancellor ma'am, I would like to thank you for sparing your time, because whatever you have discussed here is invaluable. इतना अच्छे से, इतना सिंपल वे में, आई थिंक पढ़ाना बच्चों को बहुत मायने रखता है, और आपने बहुत ही आसान तरीके से इनको बताया है. अभी हम थोड़ा सा इनको टाइम देंगे so that they can digest, they can imbibe, and they can apply it to their research problems. So that is what is required. So thank you so much, sir, for being here. And definitely, I'm so thankful to Dr. Dayal and Dr. Mahima for connecting with you, because, in this, it's very, very hectic day today, sir. Like because of National Education Day, we have had, many events. Yes, definitely. And, we appreciate the work which has been done by legendary, first home education minister of ours of independent India. And we are trying to follow their footprints. And when this NEP has also come, so definitely more into science and technology, more into research work, that is what we are required to do. हमें research में बहुत ज़्यादा ध्यान देना Yes, है yes, और उसको definitely. बहुत बढ़ावा देना है. Your research score is already very good, and you have got a very high NIF ranking, I see. Yes. So that is the reason, and we want our students to do good research work with the help of faculty members, definitely. But definitely experts like you can always, add on to, what we can give them. So thank you so much, sir, once again, for being here with us and enlightening our students and our faculty members also. Thank you so much, sir. Thank you very much for providing me this opportunity and listening me patiently. Thank you very much. And I would request all of you to visit my YouTube channel. That is also Sure, sir. have very Sure, good sir. lectures on statistics. Sure, sir. Definitely we'll do that. Thank you, sir. Okay, thank you. Namaskar.